Hello, students and viewers. Today, I am thrilled to share with you a video that celebrates the life and legacy of Sir Roger Scruton, as described in Joseph Addison's essay, Sir Roger at Westminster Abbey. In this essay, Addison paints a vivid portrait of Sir Roger Scruton as a man of great honor, wisdom, and piety. We learn about Sir Roger's deep reverence for tradition and his unwavering commitment to the values of his ancestors. Through Addison's words, we are transported to Westminster Abbey, where Sir Roger often visited to reflect on the transience of life and enduring power of faith. We see Sir Roger in his element, surrounded by the grandeur and majesty of the Abbey, and reminded of the importance of remembering those who came before us. So, in this video, we explore the theme of Addison's essay and dwell deeper into the life and legacy of Sir Roger Scruton. Let's start it. Sir Roger de Coverley was a knight and a very good friend of Joseph Addison. So one day he was reading his paper written about Westminster Abbey, and he expressed his interest in visiting the tombs with him. Then the writer agreed to meet with Sir Roger, and he said, "Okay, I'll go with you. I'll go with you, and we will visit there Westminster Abbey." So my friend Sir Roger de Coverley told me thought her night that he had been reading my paper upon Westminster Abbey, in which says he there are a great many ingenious fancies. So Sir Roger de Coverley complimented the writer on their paper about Westminster Abbey. He told me at the same time that he observed I had promised another paper upon tombs, and then he should be glad to go and see them with me, not having visited them since he had read histories. So students, यहाँ पर जो them है, them denote करता है किसको? tombs को. तो वो कहता है कि उसने कहा था, उसने राइटर ने कहा था कि वो और भी पेपर्स ऐसे लिखेगा उन टोम्स के ऊपर, और वो बहुत खुश होगा अगर वो वहाँ पर जाए और उन टोम्स को देखे, क्योंकि आज तक जो भी हिस्ट्री में उसने लिखा है, हिस्ट्री में वो टोम्स वहाँ पर बनाए गए हैं, तो वहाँ पर वो आज तक भी विजिट नहीं करने गया है। आई कुड नॉट एट फर्स्ट इमेजिन हाउ दिस केम इन टू अ नाइट्स हेड। पहले तो उसको बहुत ही वंडर फील होता है सर रॉजर को कि एक नाइट जो है, क्योंकि सर रॉजर एक नाइट थे और वो उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि उन्होंने ऐसी टूम्स को विजिट आज तक नहीं किया होगा। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो इन टूम्स को जो है विजिट करना चाह रहे हैं। टिल आई रिकलेक्टेड दैट ही हैड बीन वेरी बिजी ऑल लास्ट समर अपॉन बेकर्स क्रॉनिकल, which he has quoted several times in his dispute with Sir Andrew Freeport since his last coming to टाउन। क्योंकि उसे याद है कि वो बहुत बार जब भी कभी उसको लगता था कि वो अपनी कोई क्रॉनिकल्स के बारे में या अपने पेपर जर्नल्स के बारे में कभी भी वो लिखता था या उन्हें बताता था, तो वो हमेशा कहते थे कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। और वो अपने डिस्प्यूट्स को भी शेयर करते थे कई बार कि एंड्रयू फ्रीपोर्ट के साथ, जो कि एक पॉलिटिकल फिगर है, उनके साथ उनका काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि वो मेरे पेपर्स भी पढ़ा करते थे। अकॉर्डिंगली आई प्रॉमिस टू कॉल upon him the next morning that we might go together to the abbey. So अब वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हम अब एबे पर जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में समझने में परेशानी है उनके लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। सर रॉजर दी कॉवरले complimented the writer on their paper about Westminster Abbey and expressed interest in visiting the tombs with them. The writer agreed to meet Sir Roger the following day. When they met, Sir Roger had just finished getting shaved and offered the writer a glass of window Truby's water. Now we can find that Truby water in the next paragraph. Like,
I found the knight under his butler's hand who always shaves him. सो यहाँ पर जो एडिसन है वो कह रहे हैं कि नाइट जो है हमेशा अपने बटलर के हाथों से ही अपने आप को शेव कराते थे. ही वॉज नो सूनर ड्रेस्ड. अभी वो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था कि वो जाएंगे सर रॉजर के साथ में, और वो सर रॉजर के घर पे पहुँच भी जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि उन्होंने अभी कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, ड्रेस्ड भी नहीं थे वो. देन ही कॉल फॉर अ क्लास फॉर विडोज ट्रू बाय वाटर. तभी वो अपना ट्रू बाय वाटर मंगाते हैं, विच ही टोल्ड मी ही ऑलवेज ड्रैंक बिफोर ही वेंट अब्रॉड. जो उन्होंने बताया कि वो इस ट्रू बाय वाटर को हमेशा पीते हैं इससे पहले वो कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं. ही रिकमेंडेड मी टू अ ड्रैम ऑफ इट एट द सेम टाइम विथ सो मच हार्टीनेस दैट आई कुड नॉट फॉरबियर ड्रिंकिंग इट. उन्होंने मुझे इतना स्ट्रेस करके बोला, इतने दिल से बोला कि मैं उसे पीने पर मजबूर हो गया, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया. एंड एज सुन एज आई हैड गॉट इट डाउन आई फाउंड इट वेरी अनप्लेटेबल. अनप्लेटेबल इज़ बहुत ही अनडिलेक्टेबल था, बहुत ही गंदा टेस्ट था उसका. तो जैसे ही मैंने पिया मुझे वो बहुत गंदा लगा. एंड अपॉन विच द नाइट ऑब्जर्विंग दैट आई हैड मेड सेवरल राय फेसेस. और जैसे ही उसने देखा नाइट ने आए मैंने बहुत सारी गंदे गंदे फेसेस बनाए. एंड टोल्ड मी दैट ही न्यू आई शुड नॉट लाइक इट एट फर्स्ट. और वो मुझे कहता है मुझे पता है ये तुम्हें पहले पसंद नहीं आएगा, एकदम से पसंद नहीं आएगा, बट दैट इट वॉज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड अगेंस्ट द स्टोन और द ग्रेवल. लेकिन अगर तुम्हें किसी टूम पर, तुम्हें कब्र पर, किसी ग्रेवल पर विजिट करने के लिए जाना है तो ये बेस्ट थिंग है. आई कुड हैव विश्ड इंडीड that he had acquainted me with the virtues of it sooner and it was too late to complain. अब वो कहते हैं कि मुझे पता था वो बहुत महान हैं और वो मैं उनसे कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि हम लेट हो रहे हैं. आई न्यू वट ही हैड डन आउट ऑफ. और मुझे पता है उन्होंने तो मुझे मेरे अच्छे के लिए ही पिलाया है, आउट ऑफ गुडविल की वजह से उन्होंने मुझे वो पिलाया, टेस्ट कराया. बट नाउ सर रॉजर told me further that he looked upon it to be very good for a man whilst he stayed in town. Infections वगैरह से बचाते तो वो उनकी फ़ायदे उन्हें गिनवाती है. So here when they met, Sir Roger had just finished getting shaved and offered the writer a glass of widow Trueby's water, claiming it was a beneficial preventative measure against kidney stones and infections. He even stocked up on it and when he heard about the outbreak of the plague in Dorset. Sir Roger then instructed one of his servants to hail a taxi driver by an elderly man. सो इन द अबव पैराग्राफ सिर्फ यही बातें होती हैं कि ट्रू बाय वाटर के बहुत ज़्यादा जो हैं वो बहुत अच्छे गुण हैं, इसमें वर्च्यूज़ हैं, वेरी good for health. Now his discourse was broken off by his men telling him that he had called a coach upon our going to it after having cast his eye upon the wheels. अब उसका जो डिस्कोर्स है ये सारी बातें चल रही होती है तभी उस कहते हैं भाई आपका जो कोच आपने बुलाया था, ड्राइवर जो आपने बुलाया था वो आ गया है. अब जैसे ही वो ड्राइवर आता है तो वो पहले गाड़ी को चेक करता है, उसके व्हील्स वगैरह को देखता है. आस्क द कोचमैन इफ़ हिज एक्सेल ट्री वॉज गुड. वो पूछता है कि तो क्या तुम्हारा एक्सेल विक्सेल ठीक है बिल्कुल. सो वो उससे बताता है कि नहीं सब कुछ ठीक है. देन द नाइट टर्न टू मी. फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है एंड टोल्ड मी ही लुक्ड लाइक एन ऑनेस्ट पर्सन कि हाँ ये तो थोड़ा अच्छा सा इंसान लग रहा है. एंड वेंट इन विदाउट फर्दर सेरेमनी. और हम चलते हैं अब ज़्यादा कुछ डिले ना करते हुए. वी हैड नॉट गॉन फार व्हेन सर रॉजर पॉपिंग आउट हिज हेड. अब हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इतनी देर में ही सर रॉजर ने अपने हेड को बाहर निकाल दिया. एंड कॉल द कोचमैन डाउन फ्रॉम हिज बॉक्स एंड अपॉन हिज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एट द विंडो आस्क्ड हिम इफ़ ही स्मोक्ड. अब उसे बाहर निकालता है अपने आप को खिड़की के और फिर उससे पूछता है कि स्मोक करते हो तुम. एज आई वॉज कंसिडरिंग दैट वॉट दिस वुड एंड इन ही बिड हिम स्टॉप बाय द वे एट एनी गुड टबैकोनिस्ट. वो कहता है कि चलो अब कोई बात नहीं, तुम करते हो या नहीं करते हो, लेकिन तुम ना किसी अच्छी टबैकोनिस्ट शॉप को देखकर वहाँ पर रोक देना और मुझे वहाँ पर अपनी वर्जीनिया नाम की एक सिगरेट है उसको पीना है. नथिंग मटीरियल हैपन इन द रिमेनिंग पार्ट. और उससे मतलब शो ऑफ कर रहा था कि वो वही जो है एक हाई प्रोफाइल सिगार्स को पीता है. तो कहता है कि बस यही सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. सो Sir Roger de Coverley continued talking about the benefits of widow
Truby's water, claiming that she was a generous woman who gave away her water for free to anyone who needed it. He also mentioned that many people in the country wanted him to marry her because she had a large inheritance. As they were getting into a taxi, Sir Roger inspected the wheels and asked the reader about the axle. He then asked the driver to stop at a tobacco shop so he could buy some Virginia's tobacco. Nothing exciting happened during the rest of their journey until they arrived at the west end of the abbey. Now, come to the last paragraph. As we went up the body of the church, the knight pointed at the trophies upon one of the new monuments and cried out, "A brave man, I warrant him." तो अब वो एक ट्रॉफी की तरफ वो करते हैं, एक मॉन्यूमेंट पे ट्रॉफी बनी हुई है, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है ये पक्का एक बहुत बहादुर सा इंसान होगा. पासिंग आफ्टरवर्ड्स बाय क्लाउड शोवल्स, फिर अलग अलग लोगों की वहाँ पर उसे टूम्स दिखाई देती हैं. फिर किसी को वो ब्रेव कहता है, किसी को गैलेंट कहता है, किसी के कोई बस बाय टूम देखता है. तो अपने आप से कहता है कि ये कितनी शानदार जगह है, क्या ग्रेट मैन थे ये, और मैं आज तक यहाँ पर नहीं आया था, मैं कितना ब्लॉक हेड था. सो एज दे वॉक थ्रू द चर्च, जैसे ही वो चर्च में मिलते हैं वहाँ वॉक थ्रू हो रहे होते हैं चर्च में, सर रॉजर पॉइंटेड आउट वेरियस मॉन्यूमेंट एंड प्रेज द पीपल दे कॉमोमरेटेड, calling them brave and gallant men. When they came across Busby Storm, Sir Roger spoke highly of him as well, saying he was a great man who had even whipped Sir Roger's own grandfather. Sir Roger regretted not having studied under Busby himself and called himself a blockhead for not doing so. So students, मैंने आपके लिए इसकी एक पूरी समरी बना दी है जिससे आप इजीली अपने पेपर में वो समरी एज इट इज़ आप लिख सकते हो और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी. पर गाइस मेरी आपसे एक शिकायत है, मेरी बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में. आई एम अ वेरी बिजी वुमेन. सो प्लीज़ अगर आपके लिए मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ जो बच्चों को कहीं नहीं मिलते हैं यूट्यूब पर, या उनके टीचर्स भी उन्हें इतना अच्छे से समझाने में अनेबल होते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ. सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ 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 गाइज, थैंक यू. सी दिस इज़ द समरी. आप लोग सब इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है.